that ऑफ योर माइक अपने माइक को आप लोग कोशिश करिए कि ऑफ करके रखिए। एक बात तो होती ही है कि जब आपका माइक ऑन रहता है, मैं तो म्यूट कर दे रही हूँ अभी सभी को, बिकॉज सम ऑफ यू हैव स्टार्टेड टू शाउट। कुछ बच्चे जो है एकदम इतने जोर जोर से चिल्लाना वो शुरू कर देते हैं कि मुश्किल हो जाता है पढ़ाना। और सब टाइम्स आई डू नॉट लाइक दिस टाइप्स ऑफ, जिस तरह की आवाज आपके घर से आती है वो आवाज सचमुच में सुनने लायक नहीं रहती है, इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नाउ children, yesterday we have completed lesson 23. yesterday we have completed lesson 23 itself. हम लोगों ने lesson 23 को पूरा किया था yesterday, और आज हम लोग फिर से yesterday lesson 23 का, because आप लोगों को एक बात याद रखिएगा, I have promised that I will post the question answer to you, and that I will do, but first we will complete the chapters and then we will do the question answers, and ABC we are doing at the same time, and the MCQ also जो हम आप लोगों को बीच बीच में पूछते भी रहते हैं। तो so don't worry about the, some students are always reminding me that ma'am you are not giving, but I will give you. That is my duty, and I am always, it is in mind also, in my mind also, that I have to post question answer to you, so please don't worry for that. And if you are not understanding the lesson, please go through with view the YouTube live classes for your, to enhance your knowledge. If you are losing, you are not attending your classes at the time, but please view the YouTube live classes. Now page number 196 it is. Today we will complete the ABC. Page number 196. Where do most people, that is the tick the correct option of lesson 23 ABC. A, tick the correct option. Where do most people prefer to go to fulfill their day-to-day requirement? Pahadi market, a mall, a neighborhood market, or a popular store? तो इसका आंसर होगा डी, और नेबरहुड मार्केट। आंसर होगा डी, और नेबरहुड मार्केट। Answer is D, a neighborhood market. Is it clear? A neighborhood market. Where do most people prefer to go to fulfill their day-to-day requirement? That is a neighborhood market. Answer is a neighborhood market. Number 2, a democratic government is committed to protect the interests of D, all sections of the society. Answer is D, all sections of the society. Answer is D, all sections of the society. A democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society. The minorities, B have women and children, C has scheduled caste, scheduled tribes and OBCs, and D all section of the society. तो ये होगा all section of the society, whether they are rich or poor. सबका ध्यान रखना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम रहता है. The price of goods in a market is determined by the factors like demand by the consumers, requirement of the manufacturer, variety of goods available, import and export restrictions. तो सबसे ज्यादा क्या होता है? डिमांड. डिमांड पर ही सप्लाई डिपेंड करता है. डिमांड पर ही सप्लाई डिपेंड करता है. तो इट इज डिपेंड ऑन द डिमांड by the consumer. Wages of people working in a market are low as government is not paying attention. Their employees are exploiting them. Employers are exploiting. The workers are more, but work is less. Their wages have not been fixed by the government. Answer इसका C होगा. Wages of the people working in a market are low. Low क्यों हो जाता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है क्यों है? The workers are more, but the work is less. Worker कितने हैं? ज्यादा है. काम क्या है? कम है. Work is less. Workers are more. Work is less. Workers are more, but work is less. Which one of the following statement about the democratic government is false? जो क्या false है? Number A, it provide opportunity to ensure equitable distribution of goods. Number B, it provides facilities to eradicate social inequalities. Number C, it provide all type of service to all the citizens. Number D, it provide equal distribution of wealth. The which one of the following statement
about the democratic government is false. नंबर डी इसका फॉल्स है. इट प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है. सूर्यांश, योर आंसर इज राइट. योर आंसर इज राइट. नाउ फिर से एक बार ABCD E 1 2 3 4 5 ए का हम लोग फिर से पढ़ेंगे. Where do most people prefer to go to fulfill their day-to-day requirement? That is the neighborhood market. इसका D होगा. Number 2, a democratic government is committed to protect the interest of D, और इसका भी D होगा. All sections of the society. D, all sections of the society. Number 3, the price of goods in a market is determined by the factors like demand by the consumers. A होगा, demand by the consumers. A होगा. Number 4, wages of people working in a market as low as the number C होगा इसका आंसर. As the workers are more but work is less. वर्कर ज्यादा है, काम कम है, इसलिए क्या है, वेज कम रहता है. लोग कम दाम पर ज्यादा वर्कर उनको मिल जाते हैं. Number 5, which one of the following statement about a democratic government is false? इसका भी आंसर डी होगा. It provide equal distribution of wealth. ये गलत है. It provides equal distribution of wealth is wrong. It provides equal distribution of wealth is wrong. False है. नंबर अब नाउ बी. किन्हीं का कुछ छूट रहा होगा तो वो हमसे चैटिंग करके पूछ लेंगे बाद में. बी, फिल इन द ब्लैंक्स. अ रिटेलर सेल्स गुड्स एट हायर प्राइसेस. फिल इन द ब्लैंक्स में रिटेलर होगा. नंबर 1 में रिटेलर होगा. अ रिटेलर सेल्स गुड्स एट अ हायर प्राइसेस. A retailer sells goods at a higher prices. Number 2, from wholesale market we buy items that we can store for a longer time. Store वो हो जाएगा. आशीष रंजन अभी थोड़े पहले पढ़ाने के बाद फिर करा देंगे. From wholesale market we buy items that can be stored for a longer time. That can be stored for a longer time. Number 3, the public distribution system ensures the distribution of rice, wheat and sugar at a reasonable rate for the poor. Reasonable, REASONABLE. REASO, reasonable rate for the poor. Reasonable rate for the poor. Reasonable rate for the poor. A democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society. Number 4 में, a democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society. A democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society. Number 5, market also determine the wages. Number 5, market also determine the wages. Number 5, market also determine the wages. C, match the following. फिर से एक बार बी को रिपीट कर रहे हैं. आई एम रिपीटिंग बी अगेन. A retailer sells goods at a higher prices. Number 2, from wholesale market we buy items that we can be stored for a longer time. Store होगा उसका आंसर. STORE, store. Number 3, the public distribution system ensures the distribution of rice, wheat and sugar at a reasonable rate for the poor. Reasonable rate for the poor. Number 4, a democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society. Number 5, market also determine wages. Number 5, market also determine wages. Match the following. Now it match the following. Market का D होगा. Place of sale and purchase of goods. Market, place of D, place of sale and purchase of good. शाश्वत राय जी का क्या क्वेश्चन रॉन्ग है? कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है? ये बात मेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है? पार्टिसिपेंट्स में शाश्वत राय ने क्या कहा? मैम सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कब कराइएगा? पीयूष कुमार. अच्छा, 4th क्वेश्चन रॉन्ग है. कौन सा 4th क्वेश्चन रॉन्ग है बताएंगे? ए बी का बता दीजिए. शाश्वत शुभम कुमार 7E के
Sanidhya Sanchit. Can I show with video? What do you want to show? What do you want to show, Sanidhya Sanchit? Will you tell me? Wrong question. What question is wrong? मैम बी क्वेश्चन नंबर 4 रॉन्ग है बी का. क्वेश्चन नंबर 4 है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो ये कहां से रॉन्ग है? वेयर इट इज रॉन्ग? बताओ वेयर इट इज रॉन्ग. क्वेश्चन इज मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस. वेजेस करता है. मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस. ये नंबर 5 में दिया हुआ है. ये क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है. मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है. पता नहीं तुम लोग कहाँ पे कौन सा तुम लोग दिमाग चला लेते हो बिना मतलब का बैठ के और चैटिंग शुरू कर दोगे. तुम देख लो तुम्हारे बुक में अगर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा अगर आंसर है तो उसको ठीक कर लो. यू डू इट, करेक्ट इट. यू करेक्ट इट. बी का मेरे जो मैं जो जिस बुक से तुमको पढ़ा रही हूँ वे जो है उस बुक में दिया हुआ नंबर 1 है और रिटेलर सेल्स गुड्स एट ए हायर प्राइस. नंबर 2 है फ्रॉम होलसेल मार्केट वी बाई आइटम्स दैट कैन बी stored for a longer time. That is number 2 in my book, through which I am. Ma'am, our 5th question is our government has fixed wages. आपका बुक नया वाला बुक है. इट दिस न्यू एडिशन बुक आप यूज कर रहे हैं. जो बुक को हमको बता रहे हैं वो क्या न्यू बुक को यू आर फॉलोइंग द न्यू बुक. आई डोंट हैव द न्यू. अगर है तो उसका आंसर आप देख लीजिए. हम वही पढ़ाएंगे जो मेरे पास अभी बुक अवेलेबल है. इसके लिए हम कोई बहुत ज्यादा परेशान हम नहीं होना चाहते हैं और नहीं आप लोगों को बोले बीच में डिस्टर्ब करिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स जो मेरे बुक में है हम बता दे रहे हैं. और जिनका अगर न्यू बुक है कुछ आपको गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको फिर से थोड़ा देख लीजिएगा. अपना हमसे बाद में आप फोन करके व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दीजिएगा, हम उसको लिख देंगे आपका. और रिटेलर सेल्स गुड्स एट ए हायर प्राइस. ये फिल इन द ब्लैंक्स है. नंबर 2 फ्रॉम होलसेल मार्केट वी बाई आइटम्स दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम. नंबर 3 द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस wheat and sugar at a reasonable rate for the poor. Number 4, a democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society. Number 5, market also determine the wages. Market also determine the wages. और जिनका प्रॉब्लम हो रहा है वो जो है उसका पिक ले करके और व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, हम देख लेंगे. जो द ब्लैंक्स का व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, उसका लेकर के पिक डाल दीजिएगा, हम उसको आई विल सी इट. एंड नाउ इट्स मैच द फॉलोइंग. मार्केट प्लेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. मार्केट. नंबर 2 रिटेलर सेल्स एट हायर प्राइसेस. सी होगा. नंबर 4 इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटी इसका बी से मैच करेंगे इसको. इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इनकम. इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इनकम. नंबर 4 पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एट रीजनेबल रेट. Number 5 wholesale. A buys directly from the producer. Wholesaler buys directly from the producer. This is the answer. Now फिर से एक बार देख लीजिए. Market place D होगा इसका. करेंगे place of sale and purchase of goods. Number 2 retailer इसको C मैच करेंगे. Sales at a higher price. Number 3 economic inequality. Inequality of economic assets and income. Inequality of economic assets and income. Number 4 PDS distribution of goods at reasonable rate. PDS का मतलब है public distribution system.
The full form of PDS is public distribution system. Number 5, wholesaler. Wholesaler buys directly from the producer. Wholesaler buys directly from the producer. Now again I am repeating A. Some of you are saying that, ma'am, please repeat the A of the where do people, most people prefer to go to fulfill their day-to-day requirement. This the tick the correct option A. They, तो इसका D होगा a neighborhood market. Answer is a neighborhood market. Number 2, a democratic government is committed to protect the interest of D. इसका भी D होगा all section of the society. All section of the society. Number 3, the price of goods in a market is determined by the factors like demand by the consumers. Demand by the consumers. Answer is demand by the consumers. Number 3, 4, wages of people working in a market as low as C. The workers are more, but the work is less. The workers are more, but the work is less. Number 5, which one of the following statement about a democratic government is false? इसका भी D होगा. Answer is D. It provides equal distribution of wealth. It does not provide equal distribution of wealth. I think you have completed it now. And we will do the question answer. Its question answer I will provide you. Its question answer I will provide you. Now open lesson 8. Lesson 8, children. Lesson 8. Land and the people. B4 का होगा interest. A democratic government is committed to protect the interest of the all section of the society. B4 का interest होगा. A democratic government is committed to protect the interest of all section of the society. Now, lesson 8, land and the people. Where we are going to start land and the people. In this chapter, page number is 157. Page number is 57. All of you open land and the people. In this chapter, we will study the characteristics of some regions of the world to understand the. In this chapter, we will study the characteristic of some region of the world to understand the lives of the people within different natural ecosystem. The reasons for the study are, अब कहता है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे some areas the world का है जिसमें कि हम लोग वहाँ के लोग कैसे इकोसिस्टम जो different ecosystem है, how they pass their life or how they do their day-to-day routine. This we will study. The regions for the study are the Sahara and the Ladakh. देखिए कंपेयर कर देता है Sahara and the Ladakh desert. एक एकदम hot desert है, एक एकदम cool desert है. The prairies and the veld grass. Prairie soft है और veld जो है बहुत मतलब thick और मतलब rough grasses है. The Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin. Both are the plains areas and the river basins. तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे. Life in a desert. Here we are going to study about the life in a desert. Whether life is hard or good in a cold desert or in a hot desert. Here we are going to study in both cold and hot desert. First we will study about the hot desert. Now, life in a desert. A desert is a region having extreme temperature condition with very low amount of rainfall and scanty vegetation. In chapter 6, we have categorized deserts as hot desert and cold desert. Let us know more about the life in these deserts. अब कहता है कि चैप्टर 6 में भी हम लोगों ने हॉट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब कहता है कि फिर से हम लोग इसको एक बार और पढ़ें. We will study about more. Sahara is in South Africa. ये साउथ अफ्रीका में है.
सहारा इज इन साउथ अफ्रीका में है। तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड हैविंग वेरी स्कैंटी वेजिटेशन इज नोन एज हॉट डेजर्ट। हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप, हॉट एंड ड्राई मतलब सूखा, जिस जहाँ पानी बहुत कम पड़ता होगा उस तरह का हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप। Hot and dry landscape covered with layers of sand having very scanty vegetation is known as hot desert. उसको क्या कहते हैं? हॉट डेजर्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। द सहारा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ। सहारा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म डेजर्ट है। मैम, मीनिंग ऑफ स्कैंटी वेजिटेशन का मतलब है जहां बहुत कम वेजिटेशन होता हो। स्कैंटी का मतलब बहुत कम, ज्यादा नहीं, बहुत कम, उसी को कहते हैं। द सहारा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द हॉटेस्ट डेजर्ट्स ऑन द अर्थ। द वर्ल्ड सहारा इन अरेबिक मींस डेजर्ट। सहारा अरेबिक का एक वर्ड है जिसका नाम होता है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब सूखा एरिया, डेजर्ट मतलब सूखा एरिया। इट कवर्स ऑलमोस्ट द इंटायर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका। अब कहता है कि पूरे अफ्रीका का जो नॉर्दर्न एरिया है पूरा, उसको ये कवर करता है, मतलब सहारा डेजर्ट। It lies between the Atlantic Ocean in the west, Red Sea in the east, Mediterranean Sea in the north, and huge mounds of sand dunes in the साउथ। अब कहाँ ये कहाँ पे पड़ता है? अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। अफ्रीका का जो है नॉर्दर्न पार्ट में, इसके वेस्ट में क्या है? के बीच में, मतलब वेस्ट, ये कहाँ कहाँ? अटलांटिक ओशन, वेस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है, वे ईस्ट में रेड सी है, मेडिटेरियन सी नॉर्थ में है, एंड द ह्यूज माउंट्स ऑन सैंड ड्यून्स इन द साउथ में। बहुत ज्यादा, मतलब सैंड ड्यून्स मतलब माउंट्स मतलब ढेर है, किसका? बालू का। माउंट्स का मतलब ढेर, मतलब बालू का जो लगा हुआ जो ऊंचा ये रहता है उसको माउंट्स कहते हैं। दैट इज नोन एज द बालू, जहाँ पे एक साथ रखा रहता है बहुत ऊंचा ऊंचा, उसको माउंट्स कहते हैं। That is known the south. It is also bounded by a chain of mountains in the north called the Atlas Mountain. और नॉर्थ में मतलब कहता है कि एक चेन भी है माउंटेन का जिसको कि एटलस माउंटेन कहलाता है। द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन द सहारा डेजर्ट इज द नाइल रिवर। अब सहारा डेजर्ट में जो एक ही जो पानी का जो सोर्स है वाटर है वो क्या है? नाइल नदी है। द सैंड ड्यून्स आर क्वाइट कॉमन इन दिस रीजन। सैंड ड्यून्स मतलब आंधी जो चलता है, बालू को एक जगह से दूसरी जगह जो जमा कर देता है, उसी को हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। द सहारा इज अ रीजन ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विथ क्लियर स्काई। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 20 सेंटीमीटर। अब सहारा कैसा है? वहां पर हमेशा ही कैसा है? हॉट एंड ड्राई। हॉट मतलब गर्म, ड्राई मतलब सूखा हुआ, मतलब गर्म भी है और बहुत सूखा हुआ भी है। क्लाइमेट विथ क्लियर स्काई, स्काई में कैसा रहता है? एकदम साफ सुथरा, मतलब बारिश वगैरह आने का चांस बहुत कम रहता है। कहने का मतलब ये है क्लाउडी स्काई नहीं रहता है, क्लियर स्काई रहता है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 20 सेंटीमीटर। और वहां जो पानी पड़ता है वो क्या है? बहुत कम पड़ता है, मतलब लेस देन 20 सेंटीमीटर, बहुत थोड़ा सा पानी पड़ता है। इट इज वेरी ड्यूरिंग द डे वेयर द नाइट्स आर कूल। अब कहता है कि दिन के समय ये बहुत गर्म रहता है और जबकि रात जो है बहुत ठंडी हो जाती है। नाइट्स आर कूल। द डे टेम्परेचर इज अबाउट 43 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर एट नाइट गोज डाउन टू अबाउट 10 डिग्री। अब देखिए, गर्मी दिन में 43 डिग्री मतलब बहुत ज्यादा गर्मी कम से कम होता है, और रात में 10 डिग्री मतलब जितना ठंडा अभी हम लोग का पटना में पड़ा उससे भी ज्यादा ठंड पड़ती है रात में। डू यू नो द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज अबाउट 58 डिग्री सेल्सियस एट अल अजीजिया इन लीबिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सहारा के नॉर्थ के अल अजीजिया में सबसे ज्यादा मतलब टेम्परेचर ये किया गया वो था 58 डिग्री। मतलब इतना कि आदमी लगता है कि बाहर हाथ निकलेगा तो जल ही जाएंगे हम लोग, इतनी गर्मी वहां पे पड़ी थी। As a result of high temperature and low rainfall, vegetation cover is scanty and almost nil। देखिए अभी किसी ने पूछा था मुझसे स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। टेम्परेचर जो होता है इतना हाई होता है कि वेजिटेशन कवर और रेनफॉल होता ही नहीं है। तब अब क्या होता है? एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रेनफॉल होता ही नहीं है, तो वेजिटेशन कवर स्कैंटी या नील, या तो नहीं है। नाइट इन नाइट हाउ डिग्री इज इंक्रीज, इंक्रीज कहाँ करता है?
वो तो गिर गया, वहां टेम्परेचर मतलब गिर गया, क्योंकि टेम्परेचर जैसे हाई होता है उसी तरह लो भी हो जाता है वहां पर, क्योंकि वेजिटेशन कवर नहीं है। इसकी वजह से द एक्सेप्ट नियर द नाइल रिवर वैली। अब नाइल रिवर वैली के पास क्या है, वहां पर खेती का काम होता है, वेजिटेशन होता है। द सहारा इज स्पार्सली कवर्ड विथ वेजिटेशन लाइक ग्रासेस, श्रब्स एंड बुशेस। स्पार्सली मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा स्पार्सली मतलब थोड़ा बहुत वेजिटेशन वहां पर है। अब क्या क्या वहां पर, ग्रास है, श्रब्स एंड बुशेस है। प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट दैट रीच डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब प्लांट को कहता है कि बहुत लॉन्ग रूट है जो कि बहुत मतलब मॉइस्चर खींचने के लिए, मतलब अंदर से वो पानी खींच करके, और तब वो रहता है, इतना लॉन्ग उसका रूट है कि सॉइल के अंदर से, बहुत अंदर से जा करके वो मॉइस्चर खींच करके और पानी सर्वाइव करता है, ये कहने का मतलब। द इम्पोर्टेंट ट्रीज आर कैक्टस एंड डेट पाम। इम्पोर्टेंट ट्री क्या क्या है, कैक्टस और डेट और पाम है। डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट हियर, बोथ एनिमल्स एंड पीपल ईट डेट्स। द सैप ऑफ दैट ट्री, डेट ट्री इज यूज्ड टू मेक वाइन। अब उसका जो है सैप का मतलब, उसका जो ऊपर का जो ये होता है स्किन जैसा, उसको उतार करके और उससे वाइन बनाया जाता है, इज यूज टू मेक वाइन। द सीड्स ऑफ डेट फ्रूट इज क्रश एज यूज एज, उसका जो सीड होता है, जो बीज होता है निकलता है, उसको क्रश करके मतलब कूच दिया जाता है। क्रश करने का मतलब है जो कूचना, और उसको जो है जानवरों का खाना बनाकर उनको दिया जाता है। यूज एज फॉडर फॉर द कैमल्स एंड गोट्स। द लीव्स एंड ट्रंक्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग बास्केट, रोप एंड डोर। और उसका जो है लीव्स, पत्ता, और जो ट्रंक होता है, जो बीच का एरिया, उसको भी यूज करके क्या क्या बनाया जाता है उससे, मेकिंग बास्केट, रोप्स एंड डोर्स। दरवाजे बनाए जाते हैं, बास्केट बनाए जाते हैं, रस्सी भी बनाई जाती है। अब देख लीजिए किस तरह से मैक्सिमम यूज कर लिया जाता है। सम ऑफ द एनिमल्स स्पीसीज फाउंड इन द सहारा डेजर्ट आर फॉक्स, जैकाल, सैंड फॉक्स एंड कैमल। अब यहाँ पे कौन कौन सा एनिमल मिलता है, देखिए मिलता है यहाँ पर फॉक्स, जैकाल, सैंड फॉक्स एंड द कैमल। द कैमल हैज ए हम्प एट द बैक टू स्टोर इनफ फैट विथ विच इट कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज। अब कहता है कि कैमल को, अब हाउ द कैमल सर्वाइव in the desert, so it has a hump on its body and it stores water in it, and with this, with the help of this stored water, it can live for 20 more than a week without water। एक हफ्ता तक भी बिना पानी पिए ये रह सकता है। द कैमल हैज ए हम्प एट ए बैक टू स्टोर इनफ फैट with which it can live without food for several days। numerous types of reptiles are found in Sahara। अब बहुत तरह तरह के कहता है कि रेप्टाइल्स जो है सहारा में मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, दे फ्रॉग्स, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा। इंसेक्ट्स लाइक स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर आल्सो इनहेबिट इन दिस डेजर्ट। अब स्कॉर्पियो और ये क्या कहते हैं, स्पाइडर भी यहाँ पर मिलते हैं। The northwestern part of Sahara is known as Rocky Desert। Rocky मतलब उधर पहाड़ की तरफ, Rocky Mountain भी एक है। Most of the land is barren and uninhabited। अब उधर का जो है barren का मतलब बंजर, वहाँ कोई खेती नहीं होती है। और तो जब कोई खेती नहीं होती है, कोई पेड़ पौधा नहीं मिलता है, तो वहाँ लोग भी नहीं रहते हैं, तो उसी को कहते हैं अनइनहेबिटेड, मतलब कोई लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। अनइनहेबिटेड उसी को वही कहलाता है, अनइनहेबिटेड मतलब वहां कोई लोग नहीं रहते हैं। डू नॉट, पीपल डू नॉट वांट टू लिव देयर। इज इट क्लियर? अनइनहेबिटेड। द अनइनहेबिटेड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो। मतलब यहाँ पे लोग जो है, मतलब डेंसिटी मतलब लोगों का रहना जो है, डेंसिटी का मतलब पॉपुलेशन, जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, बहुत कम लोग रहते हैं, दैट इज द is low। Population is mainly concentrated near the water bodies like oasis। Population जनरली कहाँ मिलता है, ओएसिस के, ओएसिस मतलब जहाँ पे पानी का एरिया होता है उसी को कहते हैं। The cultivation of crops is possible around the oasis। Major crops are wheat, maize, barley, millets, beans, etc। अब ओएसिस के आसपास तो वहाँ पे कौन कौन सा खेती होता है, वीट होता है, बार्ली होता है, मेज होता है, और मिलेट होता है, बाजरा को कहते हैं, बीन्स होता है। पीपुल प्रेफर व्हाइट एंड लूज क्लॉथ्स टू वियर द हीट। और लोग जनरली जो है किस तरह के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट और लूज, उजला और ढीला कपड़ा पहनते हैं, वो जो है गर्मी से उनको बचाता है, कहने का मतलब ये। लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट। नाउ लद्दाख, अ कोल्ड डेजर्ट एक्सपीरियंस
low temperature and low atmospheric humidity so that there is scanty vegetable. अब यहाँ भी लो टेम्परेचर है और वहां पर यहाँ पे भी वेजिटेशन ज्यादा नहीं होता है, एक तरफ गर्मी ज्यादा होती है और एक तरफ ठंड ज्यादा है, तो ये दोनों की वजह से दोनों जगह पे अपने अपने टाइप से वेजिटेशन नहीं होता है। लद्दाख इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। Where is Ladakh? It is in the northeastern part of Jammu and Kashmir. It is in India, our country. It is a small region which is known as one of the coldest desert in the world. छोटा एरिया है और दुनिया का जो सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट इसको भी माना जाता है। लद्दाख is surrounded by lofty and high mountain ranges. Its elevation is about 3,520 meter above the sea level. मतलब उससे ऊंचा है, कितना ऊंचा है सी लेवल से? 3,520 मीटर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो वो हमसे चैट करके पूछ सकता है, या हम अनम्यूट करेंगे थोड़ी देर के बाद, लद्दाख को खत्म करने के बाद आप लोग को अनम्यूट कर देंगे और जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो हमसे पूछ लेंगे। लद्दाख इज सिचुएटेड एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड एंड इज कवर्ड विद स्नो फॉर मेनी मंथ। बहुत ऊंचाई पर है और जो है ज्यादा मतलब साल के ज्यादा महीनों में बर्फ से ये रहता है। द टेम्परेचर इज वेरी लो फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। The average annual rainfall is only 8 centimeter because it lies in the rain shadow area of the Himalayan. Rain shadow मतलब उधर बारिश नहीं होती है, rain shadow area का मतलब ये हुआ। अब vegetation कैसा है? Vegetation here is very scanty and is found only in valleys and sheltered areas. अब कहाँ मिलता है? सिर्फ वैली में मिलता है। शेल्टर्ड एरिया मतलब जो एरिया जो कवर रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैंटी? मतलब बहुत कम, स्कैंटी मतलब बहुत कम, that is the meaning of scanty. Only those plants grow here which require very little water. अब यहाँ पर किस मैम कैन स्कूल जो ओपन एंड फोर्थ हम बता नहीं सकते हैं, you will get the message. I can't say anything about the reopening of the school. We also are just waiting when the school will reopen, okay, but I can't say you. Just go with the newspaper and government announcement, what the government is announcing, the school will follow accordingly. The only those plants grow here which require very little water. Willow trees which are mainly used for making cricket bats are found in this area. इस एरिया में willow tree जिनको cricket bat जिनसे बनता है वो यहाँ मिलते हैं। The common animals here are sheep, mountain goat and yak. The soft wool of the mountain goat is used for making expensive pashmina shawl. The yak is one of the most important animal as it gives milk and is also used for transportation. It has a thick fur to protect it from the extreme cold. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ का फेमस एनिमल कौन है? याक है, जो कि यहाँ मिलता है। तो याक को लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते हैं, इसके मिल्क को भी पीते हैं। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड मतलब जो ऊंचाई पे जो बसता है उसी को अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब वही है जो आप लोगों को बताए हैं ना, इक्वेटर को के जो आगे का जो लाइन है वही अल्टीट्यूड है। जैसे जैसे इक्वेटर से हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ठंड बढ़ती चली जाती है। The yak is one of the most important animal as it gives milk and is also used for transportation. It has a thick fur to protect it from the extreme cold. The main river of Ladakh is the Indus. Population is mainly concentrated near the river bank. यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन है? इंदस नदी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉलो बुद्धिज्म। अब यहाँ के ज्यादातर लोग जो है बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इन अर्लियर टाइम दिस रीजन वाज एक्सेसिबल ओनली थ्रू सम पासेस लाइक काराकोरम पास एंड जोजिला पास। अब पहले लोग जो है यहाँ पास से मतलब अंदर का जो एरिया अंदर का जो रास्ता था पहाड़ के अंदर से, उधर ही से ही लोग जा पाते थे जो। लेकिन अब जो है बट विद द ओपनिंग ऑफ श्रीनगर लेह रोड, एक रोड बन गया है जिसका नाम है श्रीनगर लेह रोड। दिस एरिया हैज बीन ओपन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर के लोग अब वहां आने जाने लगे हैं। Agriculture is the main occupation of the people of Ladakh. About 85% of the total population is engaged in it. यहाँ के ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं, खेती करते हैं। Low rainfall and poor soil permit the growth of only a single crop in a short summer. अब यहाँ पानी बहुत कम पड़ता है और यहाँ पर क्या करता है कि बहुत कम पड़ता है
और कहता है कि मिट्टी का जो ये है टेक्सचर है वो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ बहुत अच्छी खेती नहीं हो सकती है। तब इससे क्या होता है, सिंगल क्रॉप लोग साल भर में एक ही तरह का ये कराते हैं, उगाते हैं। इन विंटर सीजन द लैंड इज कवर्ड विद स्नो, और जब विंटर होता है तो उसमें क्या होता है, पूरा जो है वहाँ पे बर्फ, जैसे अभी पड़ा हुआ है बर्फ, बर्फ पड़ जाता है। द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हियर आर बार्ली, मिलेट एंड बीन्स। पीपल ऑल्सो ग्रो फ्रूट्स लाइक एप्पल, वॉलनट एंड एप्रिकॉट। अब किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। एनीवन हैज क्वेश्चन, आप हमसे पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। आई हैव अनम्यूटेड यू ऑल। आई हैव अनम्यूटेड यू। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अनन्या राज, अनन्या राज, आपका क्या क्वेश्चन है? अनन्या राज। मैम लद्दाख, मैम इन लद्दाख वाई 3 कलर्स गिवन? 3 कलर्स मतलब हम नहीं समझे। सूर्यांश कुमार, व्हाट यू आर आस्किंग? 3 कलर्स नहीं समझ में आ रहा है हमको। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द 3 कलर्स। ब्राउन, ग्रीन एंड येलो इन इट्स मैप। देख लेते हैं। यस सर। ओहो, ये आप लोग को समझाने के लिए दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वाइज मैप 3 कलर्स इज गिवन, हम समझ गए आप जो पूछ रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं ये यूज किया हुआ है। एक तरफ माउंटेन है, इधर जिधर जम्मू एंड कश्मीर नीचे वाले एरिया में लोग रहते हैं, इसीलिए दैट्स व्हाई दे हैव गिवन इट। और एनीवन, किनका और कोई क्वेश्चन है? और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनीवन। एनीवन, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ओके चिल्ड्रन, नाउ read the chapter in Ladakh. Ma'am, when you will post the question answer of chapter 16? I have already told you. अब हम इसका कोई जवाब तुम लोग को नहीं, हर बच्चे को तुम सुनो हमने क्या कहा। आज का जो जब वीडियो खोलोगे ना, सुनोगे तो हम क्वेश्चन आंसर पे आई हैव टू। ओके, नाउ हैव अ गुड डे।